صدر صاحبہ تشریف لے آئی ہیں؟ جی اچھا صدر صاحب تشریف رکھتی. ٹھیک. جی صدر صاحبہ کی اجازت سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے تمام حاضرین کو، تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں سے محبت بھرا السلام علیکم، آداب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. کیا کہنے. سامعین، آج کا بدریہ زوم آن لائن مشاعرہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بزم علم و ادب گلاسکو اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت محترمہ ممتاز منور پیر بھائی آف پونا انڈیا سے کر رہی ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اکثر جانتے ہیں، بہت ہی مشہور و معروف شاعرہ، ادیبہ اور علم و ادب سے گہری دلچسپی رکھنے والی معروف شاعرہ ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں وہ صدارت کر رہی ہیں. باقی ہمارے جو سامعین ہیں ان کے ویسے میں نام پڑھ دیتا ہوں. سلیم رضا صاحب ہیں، شائق نصیر پوری صاحب ہیں، شازیہ عالم صاحبہ کراچی سے ہیں، فوزیہ اختر کلکتہ انڈیا سے ہیں، نادرہ ناز کلکتہ انڈیا سے ہیں، عبدالحمید صاحب کینیڈا سے ہیں، ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب جرمنی سے ہیں، ڈاکٹر منور کنڈے صاحب انگلینڈ سے، مونا الیزابتھ حیدرآباد دکن سے مہمان اعزازی، اور جناب مہمان خصوصی رانا عبدالرزاق خان صاحب لندن سے، اور صالح اچھا صاحب مہمان خصوصی. اور اس طرح سے ہماری صدر صاحبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ پونے انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں. آج کا پروگرام کے بارے میں جیسا کہ اکثر دوست احباب جانتے ہیں کہ یہ آج کا مشاعرہ مشہور معروف شاعر راغب مراد آبادی کی یاد میں ہم منعقد کر رہے ہیں. ان کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ 19 جنوری اردو کے نامور شاعر ادیب یعنی 2011 کو وہ بدھ کے روز کراچی میں 93 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے تھے. دہلی میں 1918 میں وہ پیدا ہوئے اور راغب مراد آبادی دہلی کالج سے گریجویشن کی، اور مولانا ظفر علی خان صاحب کی طرح سے شاعری کمپوز کرنے کا انہوں نے فن بھی سیکھا. اور تقسیم کے بعد وہ کراچی میں آ گئے، جہاں انہیں سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مہاجروں کی بحالی کی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا تھا، اور مہاجر برادری کی بہتری کے لیے بہت انہوں نے تعاون کیا. 40 کتب انہوں نے لکھی، جن غزلوں، نظموں اور نعتوں، نعتیہ کلام اور پنجابی میں شاعری کا ایک مجموعہ، اور اس طرح کی غزلوں کے بہت سے اور بھی مجموعے جو ہیں ان کے شائع ہوئے اور بے انتہا پذیرائی ملی.
اور اس طرح سے ویسے تو کراچی کے لوگ صرف کراچی کے لوگ ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے بھی لوگ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں، اور راغب مراد آبادی کے پاس ہزاروں شاگرد تھے، جن میں مشہور شاعر جن کی ہم نے گزشتہ حال ہی میں چند دن پہلے حبیب جالب کا جو ان کے بارے میں ایک خاص پروگرام منعقد کیا گیا، یہ بھی ان کے شاگردوں میں تھے، اور حبیب کو یہ راغب صاحب نے حبیب کو مشورہ دیا کہ وہ طالب علم کو کہ وہ جالب کو اپنے قلبی نام کے طور پر اپنائیں۔ یہ بات میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جالب صاحب کے بڑے بھائی مشتاق مبارک کے بھی یہ استاد تھے۔ جی جی بالکل بالکل، اور اس طرح سے راغب صاحب پنجابی زبان اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس میں بھی کافی ان کے اندر روانی تھی، اور انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی تھی کہ انہیں زبان سیکھنے کے لیے کس چیز نے متاثر کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ دیر بعد تھوڑی سی مزید بات کروں گا۔ چلتے ہیں، محترمہ صدر صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف فرما ہے اور ہمیں پروگرام کی اجازت عطا فرمائیں۔ جی بالکل اجازت ہے، شروع کیجئے۔ آج کے پروگرام میں جی شکریہ، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم دعوت کلام دیں گے سلیم رضا صاحب کو، جن کا تعلق گلاسگو سے ہے۔ سلیم رضا صاحب پہنچ گئے ہیں یا ابھی تک نہیں آ سکتے؟ میرا خیال نہیں آئے، میرے خیال سے ابھی نہیں آئے۔ جی ان کی عدم موجودگی میں اب ہم دعوت کلام دیں گے جناب شائق نصیر پوری صاحب کو، جن کا تعلق لندن سے ہے، 2 کتب کے مصنف ہیں اور ہمارے بزرگ شاعر ہیں۔ ان کا کلام اکثر ہم اپنے پروگراموں میں سنتے رہتے ہیں۔ جناب شائق نصیر پوری صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راغب صاحب کی یاد میں مشاعرے کا تو میں ان کے لیے اپنے بھی 2 شعر لایا ہوں اور ان کے 2 اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دریافت کے نئے جزیرے ہم نے، دریافت کیے نئے جزیرے ہم نے، پائے الفاظ کے ذخیرے ہم نے، واہ۔ اور شرمائے گی خورشید کو بھی جن کی چمک، شرمائے گی خورشید کو بھی جن کی چمک، پلکوں سے تراشے ہیں وہ ہیرے ہم نے۔ اور میں نے ان کے اعزاز میں یہ لکھا ہے کہ یہ بتاتا ہے حساب کسی محاسب کا، یہ بتاتا ہے حساب کسی محاسب کا، یہ کہ یہ کلام نہیں ہے کسی حاطب کا۔ یہ بتاتا ہے حساب کسی محاسب کا کہ یہ کلام نہیں ہے کسی حاطب کا، دلوں میں بن پوچھے جا بیٹھتا ہے، دلوں میں بن پوچھے جا بیٹھتا ہے، ایک ایک شعر حضرت راغب کا۔ واہ جی واہ۔ حضرت صاحبہ کی اجازت سے اب ایک غزل اور صاحبہ ہیں جی شکریہ۔ عرض کیا ہے کہ یہ مت سوچو کہ دیوانگی کی بات کرتے ہیں، یہ مت سوچو
یہ مت سوچو کہ دیوانگی کی بات کرتے ہیں، غزل کے روپ میں ہم زندگی کی بات کرتے ہیں۔ اچھا ہے بھائی، واہ کیا بات ہے، واہ جی واہ، غزل کے روپ میں ہم زندگی کی بات کرتے ہیں، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا۔ اور چمکتے ہیں لہو میں جن کے جگنوں چاند اور سورج، چمکتے ہیں چمکتے ہیں لہو میں جن کے چاند جگنوں اور سورج، اندھیروں میں وہ پل پل روشنی کی بات کرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہماری زندگی کی رمز تم شاید نہ سمجھو گے، ہماری زندگی کی رمز تم شاید نہ سمجھو گے، خودی میں رہ کے بھی ہم بے خودی کی بات کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، واہ، اور جہالت پرورش پاتی ہے ہر دم جن کے ذہنوں میں، جہالت جہالت پرورش پاتی ہے ہر دم جن کے ذہنوں میں، یہی وہ لوگ ہیں جو آگہی کی بات کرتے ہیں۔ واہ واہ، اور مقترض ہے کہ جو اپنی آستین میں پرورش کرتے ہیں سانپوں کی، جو اپنی آستین میں پرورش کرتے ہیں سانپوں کی، وہی شائق ہمیشہ دوستی کی بات کرتے ہیں۔ اچھا ہے، عمدہ بھائی، عمدہ عمدہ۔ بہت اچھا شاک صاحب، بہت بہت اچھا۔ شکریہ۔ یہ مت سوچو کہ دیوانگی کی بات کرتے ہیں، واہ غزل کے روم میں ہم زندگی کی بات کرتے ہیں۔ واہ، واہ، جی سر صاحبہ، اور اجازت ہے؟ جی جی ارشاد۔ یہ ایک چھوٹی سی بیر کی ہے غزل کے۔ ہم نے جو عنوان سجایا، ہم نے جو عنوان سجایا، اس پر ہر دیوان سجایا۔ واہ واہ واہ، واہ ہم جی واہ، نے جو عنوان سجایا، اس پر ہر دیوان سجایا۔ دہلیزوں پہ کوشش رکھی، دہلیزوں پہ کوشش رکھی، تاکوں میں ارمان سجایا۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت اچھا۔ خوبصورت خوبصورت۔ ارمان دہلیزوں سے پہ کوشش رکھی، تاکوں میں ارمان سجایا۔ واہ واہ، واہ جی واہ، اور اپنے دل کی بارادری میں، اپنے دل کی بارادری میں، ہم نے ایک سلطان سجایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہم نے ایک واہ جی واہ، سلطان سجایا۔ دل میں کیسی کلیاں مہکی، دل میں کیسی کلیاں مہکی، جب بھی تیرا دھیان سجایا، اچھا ہے۔ جب بھی تیرا دھیان سجایا۔ اور لوگوں نے گھر بار سجائے، لوگوں نے گھر بار سجائے، ہم نے دل میں گیان سجایا، بہت خوب، بہت خوب۔ ہم نے دل میں گیان سجایا۔ اور یہ شعر کے دل کی الماری میں ہم نے، دل کی الماری میں ہم نے یادوں کا سامان سجایا، یادوں کا سامان سجایا۔ اور مقصد ہے کہ ہجر میں تیرے شائق نے، ہجر میں تیرے شائق نے پلکوں پر طوفان سجایا، کہنے بھائی، واہ شاید۔ پلکوں پر طوفان سجایا۔ ہم نے جو عنوان سجایا، اس پر ہر دیوان سجایا۔ واہ جی واہ، بہت اچھا۔ جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔
बहुत शुक्रिया जनाब नसीरपुरी शाइख नसीरपुरी साहब, बहुत खूबसूरत तरन्नुम के साथ आपने कलाम पेश किया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था थोड़ी देर पहले कि राग़िब मुरादाबादी ने एक जबरदस्त इंटरव्यू में बात कही कि उन्हें जबान सीखने में किस तरह से मुतासर किया गया, यानी पंजाबी जबान। तो उर्दू स्पीकिंग थे, पंजाबी जबान के बारे में उनसे पूछा गया कि आप शायद वाहिद शायर हैं जो यहाँ पाकिस्तान में आकर आपने इतनी जबानी से पंजाबियों से भी बढ़ के पंजाबी बोलनी शुरू कर दी है। तो वो उन्होंने ये बात बताई कि मैंने हिंदुस्तान में एक हिंदू लड़की के साथ दोस्ती कायम की थी। एक बार जब उन्होंने रिमार्क्स दिए कि यानी हिंदू लड़की ने चंद रिमार्क्स ये दिए कि जे तुसी साडे नाल प्यार करदे हो तो फिर साडी जबान नाल भी प्यार करो, यानी अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको भी हमारी जबान से प्यार करना चाहिए। कहते हैं कि मैंने इस चैलेंज को कबूल किया और रेडियो पर पंजाबी प्रोग्राम सुनना शुरू कर दिया। पंजाबी प्रोग्राम सुनते और पंजाबी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी और जबान पर इस तरह से महारत हासिल की कि मैंने इसमें शायरी को यानी पंजाबी में शायरी को कंपोज करना भी शुरू कर दिया। तो ये थी उनकी बुनियादी वजह पंजाबी जबान सीखने की। तो अब हम चलते हैं एक और चलते हैं कराची में हमारी एक शायरा शाइक शाजिया आलम शादी साहबा कराची में हैं, आई हुई हैं जी कराची से, नजर आ रही हैं? नहीं, वो भी नहीं आई। आप ऐसा करें, मोहम्मद सफदर साहब तशरीफ रखते हैं, अगर वो पढ़ना चाहें तो उनसे। हाँ, मोहम्मद सफदर साहब दुबई से काफी अरसे के बाद वो आज हमारी महफिल में तशरीफ फरमाए। उनसे दरख्वास्त करते हैं कि कुछ भी आप सुनाना चाहें तो जरूर अनायत करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सफदर साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुबई से नहीं जी, लंदन से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। नाम भी पूरा सही कर दें, अपना नाम भी सही कर दें। तारक सफदर है इनका नाम। अच्छा हाँ जी, मोहम्मद तारिक सफदर है। तारिक सफदर साहब। मैं शायर तो नहीं हूँ जी, किसी मशहूर शायर का कलाम पढ़ के अगर इजाजत हो तो सुना सकता हूँ। जी 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 पेश कर दें, कोई बात नहीं। ये जी चौधरी मोहम्मद अली साहब का कलाम है। जी फरमाते हैं जी, हर कोई शहर बदर लगता है। हर कोई शहर बदर लगता है। हर कोई शहर बदर लगता है, अब तो इस शहर से डर लगता है। वाह 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 वाह। दश्त दर आया है घर के अंदर, दश्त अब दश्त ना घर लगता है। वाह वाह वाह। दश्त अब दश्त ना घर लगता है। मिल के आया है किसी मंजिल से, रास्ता खाक बसर लगता है। गमे जां को भी उठा ले हंस कर, गमे जां को भी उठा ले हंस कर, ये तेरा ज़ादे सफर लगता है। वाह 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 वाह। राह चालतों से संभल
कर मिलना, राह चलतों से संभल कर मिलना, इन पे मंजिल का असर लगता है। इन पे मंजिल का असर लगता है। सुबह सादिक है या कोई आंसू, कुछ तो ए दीदा तर लगता है। नहीं, कोई गुजरा ना हो मंजिल बनकर, रास्ता ज़ेरो ज़बर लगता है। वाह जी वाह। और बढ़ जाती है लज्जत उसकी, वाह। और बढ़ जाती है लज्जत उसकी, जख्म जब बारे दिगर लगता है। बार वाह, दिगर बहुत खूब। वो जिधर हाथ उठा दे मुझसे, वो जिधर हाथ उठा दे मुझसे, शहर का शहर उधर लगता है। उधर लगता है। बहुत खूब जी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया जनाब सफदर साहब, इतने कलाम था। ये जी चौधरी मोहम्मद अली साहब मुझसे आरफी। जी जी जी, बिल्कुल जी, हमारे उस्ताद, हमारे मेहरबान थे, बहुत ही शफीक इंसान थे। और चौधरी मोहम्मद अली साहब, उनके वालिदैन हमारे हमसाए थे। अच्छा जी। और हमसाया होने की वजह से हमारा रिश्तेदारों की तरह ताल्लुक था जी। तो अब हम चलते हैं लंदन से इंडिया में चलते हैं। फौजिया अख्तर साहबा कलकत्ता इंडिया से, उनकी खिदमत में दरख्वास्त है कि वो अपना कलाम पेश करें। अभी नहीं आई। अभी नहीं आए। नादरा नाज साहबा कलकत्ता इंडिया से। हाँ, वो मौजूद है जी। जी नादरा साहबा, जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में दरख्वास्त है कि आप अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। अक्सर हमारे मुशायरों में पहले भी आ चुकी हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं है जी। जी मैं पहले सदर साहबा से इजाजत चाहूंगी। जी जी इजाजत, इरशाद इरशाद। ये कुछ चंद इशार जो है राग़िब मुरादाबादी के, उनकी मैं सुनाना चाहती, फिर अपनी एक गजल सुनाऊंगी, इजाजत है? जी जी इरशाद। जी अर्ज है कि कौन किसका यार है साईं, वाह। कौन किसका यार है साईं, यारी भी बेकार है साईं। वाह। ये भी झूठा वो भी झूठा, झूठा सब संसार है साईं। वाह। वाह जी वाह। हम तो हैं बस रमते जोगी, हम तो हैं बस रमते जोगी, आपका तो घर बार है साईं। वाह वाह। आपका तो घर बार है साईं। कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, जिसको मुझसे प्यार है साईं, जिसको मुझसे प्यार है साईं। क्रोध कपट है जिसके मन में, क्रोध कपट है जिसके मन में, मुफलिस और नादार है साईं। वाह जी बहुत शुक्रिया। अब इजाजत हो तो मैं अपनी गजल सुनाऊं? जी 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 ये गजल है। ऊंचे मकान वालों को शायद खबर नहीं, वाह। ऊंचे मकान वालों को शायद खबर नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रहने को घर नहीं, वाह। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रहने को घर नहीं। चलना है राह में जो तुझे अपने बल पर चल, चलना है राह में जो तुझे अपने बल पर चल, कोई यहाँ किसी कमियां राहबर नहीं, कोई यहाँ किसी कमियां राहबर नहीं। ऐसी भी, बहुत शुक्रिया, ऐसी भी जिंदगी में तो आएगी कोई रात, ऐसी भी जिंदगी में तो आएगी कोई रात, आएगी कोई रात, उस रात की तो फिर कोई होगी सहर नहीं। वाह वाह वाह। उस रात की तो फिर कोई होगी सहर नहीं, और जिसने बहाया सैकड़ों
इंसानों का लहू, वाह जिसने बहाया सैकड़ों इंसानों का लहू, इल्जाम कत्ल हूँ का क्यों उसके सर नहीं, इल्जाम कत्ल हूँ का क्यों उसके सर नहीं। और मक्के का शेर यूं है कि हम ऐसे दोस्तों से सदा दूर रहते हैं, हम ऐसे दोस्तों से सदा दूर रहते हैं, ए नाज जिसमें थोड़ा शौर नजर नहीं, ए नाज जिसमें वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा फौजिया अख्तर साहबा कलकत्ता इंडिया से। नादरा और नादरा नहीं, नादरा नाज, नादरा नादरा नाज नादरा साहबा अच्छी। जी। फौजिया अख्तर साहबा आ गई हैं? मेरा ख्याल नहीं आई। नहीं, अभी नहीं आई। मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक साहब ओम प्रकाश गुप्ता साहब हैं, अगर वो पढ़ना चाहें तो वो उनको दावत दे दें। जी गुप्ता साहब, गुप्ता ओम साहब प्रकाश, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आदाब, आदाब। मैं माफी चाहता हूँ, मैं सिर्फ सुनने का कायल हूँ। ठीक, हमारे क्लासमेट है एलिजाबेथ मुना, हैदराबाद से। जी 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 एलिजाबेथ कुरियन, एलिजाबेथ मुना जी जी, मुन्ना जी है, साहब। जो आज की टीम में शामिल है। तो ठीक है बहुत बहुत जी, शुक्रिया ओम आपका। प्रकाश साहब जी, बहुत बहुत आज्ञा शुक्रिया। सरकार। मैं सुनने का शौक रखता हूँ। जी। फिर अब हम चलते हैं कनाडा चले जाएं। चलते हैं कनाडा में। कनाडा ही जाना पड़ेगा। जी जी, कनाडा ही जाना पड़ेगा। कनाडा जाने के बगैर कोई चारा नहीं है। अच्छा, तो कनाडा में हमारे दोस्त जो वहाँ इंतजार में हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही खूबसूरत उम्दा कलाम नहायत खुश लहानी से पढ़ते हैं, और अक्सर तमाम अहबाब ने उनका कलाम मुख्तलिफ मुशायरों में सुना होगा। उनकी खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब अब्दुल हमीद हमीदी साहब। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा सदर साहबा की जानिब से मैं गजल पेश करना चाहता हूँ। वाह। पहले एक शेर रागिब साहब का, जिससे कहते हो तुम एक कतराए अश्क, मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां है। ऐसे तो नहीं है जी, ये तो नहीं बात। ये नहीं है, तरन्नम से चले ना, ये तो कोई बात नहीं है। ये तो अभी रागिब साहब का सुना रहे हैं ये ना। तो रागिब साहब का शेर जी। ये अपना सुनाएंगे तरन्नुम से। मैं सर तरन्नुम से अर्ज करता हूँ। ये इकबाल की जो ये पीछे शोर कुछ हो रहा है, ये जो शोर हो रहा है, आल म्यूट कर दिया करें। ये आल म्यूट कर दे आप कंडे साहब। कंडे साहब उसको कर कहाँ से आवाज आ रही है? आल म्यूट करेंगे तो ये गाने बंद होंगे। जी इजाजत है। ये तरह मिसरा था इकबाल का कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, उस पे बोले तो कभी तेरे जुनून ने वहशत को कोई रोक सका जिंदानों में, वाह। कभी तेरे जुनून ने वहशत को कोई रोक सका जिंदानों में, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वाह। ये अर्ज़ो समा है खुले खुले
اور بالوں پر بھی سلامت ہے، واہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ چٹانوں میں واہ جی واہ میٹھی صاحب، سنتے ہیں زیرو بم میں بھی ساحل پہ لہروں کا گرنا، سنتے ہیں زیرو بم میں بھی ساحل پہ لہروں کا گرنا، ہم باد مخالف کے خوگر رہتے ہیں سدا طوفانوں میں۔ واہ 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 جی واہ جی باد مخالف کے کہ خوگر خوگر کیا کہنے کیا کہنے۔ رہتے ہیں سدا طوفانوں میں، تجھے کے سکون دل کے لیے سکھ چین جو اپنا گواتے ہیں، واہ تجھے کے سکون دل کے لیے سکھ چین جو اپنا گواتے ہیں، یہ جوہر غم بڑی ندھی جیسے انسانوں میں، یہ جوہر غم بڑی نعمت ہے جیسے انسانوں میں، بند سب کافر ہیں ایک تو مومن، مسجد مندر جنت دوزخ سب کافر ہیں ایک تو مومن، کوئی منصف ڈھونڈ کے لے آؤ، یہ جھگڑا ہے بھگوانوں میں۔ واہ 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 جی واہ واہ بہت اچھی، مسجد مندر جنت دوزخ سب کافر ہیں ایک تو مومن، واہ کوئی منصف ڈھونڈ کے لے آؤ، یہ جھگڑا ہے بھگوانوں میں۔ بندے سے خدا کا سفر کیا دو انتہاؤں میں جا ٹھہرے، واہ بندے سے خدا کا سفر کیا دو انتہاؤں میں جا ٹھہرے، کعبے قوسین پہ فائز ہیں اور وتر ہے دونوں کمانوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے۔ اللہ بہت اچھے، واہ جی واہ واہ جی واہ بندے سے خدا کا سفر کیا دو انتہاؤں میں جا ٹھہرے، کعبہ قوسین پہ فائز ہیں اور وتر ہے دونوں کمانوں میں، جہاں سوختہ ہے جبریل کے پر منزل ہے اس سے آگے کی، واہ جہاں سوختہ ہے جبریل کے پر منزل ہے اس سے آگے کی،
اس بار امانت کے ہیں امی، بس آپ ہی دونوں جہانوں میں، واہ 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 جی واہ، اس بار امانت کے ہیں امی، بس آپ ہی دونوں جہانوں میں، کب تیرے جنون نے وحشت کو کوئی روک سکا زندانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بہت خوب، بہت بہت خوب، شکریہ۔ بہت خوب، واہ واہ بہت ہی اعلیٰ۔ بہت خوب۔ کچھ اور بھی عطا کریں گے عبد جی اگر الحمید صاحب؟ اجازت ہو تو میں عرض کرتا ہوں۔ جب بھی نکتے کہ میں قریب ہوا، جب بھی نکتے کہ میں قریب ہوا، ایک تغیر بہت عجیب ہوا، ایک تغیر بہت عجیب ہوا، فاصلے بڑھ گئے کسی جانب، فاصلے بڑھ گئے کسی جانب، اور دوجی طرف قریب ہوا، بے خودی میں حواس جھاتے رہے، بے خودی میں حواس جاتے رہے، لمحہ وصل جب نصیب ہوا، رشک آتا ہے ان مریضوں پر، رشک آتا ہے ان مریضوں پر، تو میسر جنہیں طبیب ہوا، ماشاءاللہ۔ تو میسر جنہیں طبیب ہوا، یاد سے دل جو تیری غافل ہے، یاد سے دل جو تیری غافل ہے، اس کو کیوں کر سکون نصیب ہوا، اس کو کیوں کر سکون نصیب ہوا، مجھ سے بڑھ کر تجھے وہ چاہتا ہے، مجھ سے بڑھ کر تجھے وہ چاہتا ہے، میرا دل ہی میرا رقیب ہوا۔ اور آخری شعر ہے، فضل باری بچا گیا اس کو، فضل باری بچا گیا اس کو، لوگ کہتے ہیں وہ صلیب ہوا، جب بھی نکتے کہ میں قریب ہوا، ایک تغیر بہت عجیب ہوا۔ بہت شکریہ جی۔ واہ واہ، بہت شکریہ جناب عبد الحمید حمیدی صاحب، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب شہزاد صاحب شازیہ عالم شازی صاحب آ گئی ہیں، اور ان سے پہلے وہ بھی آئے انڈیا سے جو صاحب جی ہاں، پہلے ہم شازیہ صاحبہ کو پڑھوا دیں، پہلے ان سے پڑھوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کینیڈا سے چلتے ہیں اب ہم کراچی میں، روشنیوں کے شہر میں
اور ایک ایسی شاعرہ کا تعارف کرواتے ہیں. تعارف کی تو ویسے ان کی ضرورت نہیں, ان کا یہاں موجود ہونا ہی تعارف ہے. اور وہ اپنے ایک شعر میں کہتی ہیں کچھ کم نہیں ہے یہ بھی تعارف کہ میں یہاں ہوں, کچھ کم نہیں ہے یہ بھی تعارف کہ میں یہاں بنیاد چاہتوں کی وفا کی اساس ہوں. اور ان کا ایک اور شعر ہے دکھے دل کو ہنسانا چاہتی ہوں میں سب کے کام آنا چاہتی ہوں. محترمہ شازیہ عالم شازی صاحبہ, ان سے درخواست ہے کہ اپنا خوبصورت کلام پیش کریں. جی السلام علیکم. مجھے جانا ہے یہ ٹیکہ لگوانے کے لیے, تو میں اجازت چاہتا ہوں. جی آل دا بیسٹ. جی ٹیکہ آپ کو یہ دوسرا ٹیکہ لگ رہا ہے نا آج؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محفوظ ہو گئے اللہ کے فضل سے. جی شازیہ عالم صاحب آپ کھول لیجیے اپنا, آڈیو نہیں چل رہا آپ کا. نہیں وہ السلام علیکم. کھول گیا. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہماری باری ہے. جی 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 چلیے ٹھیک ہے. صدر صاحبہ کی اجازت سے ارشاد. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج راغب مراد آبادی کے سلسلے میں ان کے ایک دو اشعار ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گی. بنیاد جس کی ہے ہوی سے اقتدار پر, بنیاد جس کی ہے ہوی سے اقتدار پر, لگ جائیں گے سروں کے بھی انبار دیکھنا. جی جی. ناکامیوں نے اور بڑھائے ہیں حوصلے, ناکامیوں نے اور بڑھائے ہیں حوصلے, گزرا ہوں جب کبھی بھی کسی امتحان سے. ناکامیوں نے اور بڑھائے ہیں حوصلے, گزرا ہوں جب کسی بھی نئے کئی امتحان سے. بڑی مشکل سے مجھے آج نا 2-3 شعر ملے تھے ان کے, جو میں نے کہا تھا آپ کو سناؤں گی. ماشاءاللہ بہت اچھے شعر آپ نے منتخب کیے. لیکن مجھے وہ جو تھے کہ انبار والا بہت پسند آیا, کہ بنیاد جس کی ہے ہوی سے اقتدار پہ, لگ جائیں گے سروں کے بھی انبار دیکھنا. یہ بہت آج کل کے حالات کے اعتبار سے ہے اور بہت اچھا ہے جب انہوں نے کہا. یہ میں اپنی ایک غزل آپ کو دوسرا مصرع ہونے کو ہے وہ قلعہ بھی مسمار دیکھنا. دوسرا مصرع کچھ اور ہے. بنیاد جس کی ہے ہوس اقتدار پر, ہونے کو ہے وہ نہیں ہو. دوسرا مصرع کچھ یوں ہے شاید, ہونے کو ہے وہ قلعہ بھی مسمار دیکھنا. نہیں شاید نوٹ کرنے میں آپ کو غلطی ہوئی ہے. دوسرا شعر کا دوسرا یہ شعر کچھ اس طرح نہیں, میں نے بھی نوٹ کیا یہ شعر. تو بنیاد جس کی ہے ہوس اقتدار پر, ہونے کو ہے وہ قلعہ بھی مسمار دیکھنا. یہ دیکھیے ربط بن رہا ہے دونوں مصروں میں. جی جی ہاں, ربط تو اسی سے بن رہا ہے. چلیے میں آپ کو اپنی ایک غزل سناتی ہوں کہ دل اندر سے تنہا اچھا لگتا ہے, دل اندر سے تنہا اچھا لگتا ہے, جیسے خالی کمرہ اچھا لگتا ہے. جیسے خالی کمرہ اچھا لگتا ہے. بات اگر کچھ ہے تو وہ احساس کی ہے, بات اگر کچھ ہے تو وہ احساس کی ہے, ورنہ دل کب ٹوٹا اچھا لگتا ہے. ورنہ دل کب ٹوٹا اچھا لگتا ہے. گہنے پیار کے ہوں تو ان کے آگے پھر, گہنے پیار کے ہوں تو ان کے آگے پھر, کس کو چاندی سونا اچھا لگتا ہے. واہ واہ بہت شکریہ. کس کو چاندی سونا اچھا لگتا ہے. واہ. بات اگر کچھ ہے تو وہ احساس کی ہے, بات اگر کچھ ہے تو وہ احساس کی ہے, ورنہ دل کب ٹوٹا
अच्छा लगता है, वाह वाह वाह, वरना दिल का टूटा अच्छा लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब। जिस दिन से देखा है मैंने दुनिया को, जिस दिन से देखा है मैंने दुनिया को, दुनिया का हर रिश्ता अच्छा लगता है, अच्छा, दुनिया का हर रिश्ता अच्छा लगता है। उसका साथ मयस्सर हो तो, उसका साथ मयस्सर हो तो शादी फिर, उसका साथ मयस्सर हो तो शादी फिर, सूरज में भी चलना अच्छा लगता है, वाह वाह। सूरज में भी चलना अच्छा लगता है। और एक है नज़म है, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैंने कराची शहर में रहती हूँ, तो कराची पे उसके हालात पे जब कभी अफसोस होता है तो फिर ये अल्फाज निकल आते हैं कि कराची तुझको हुआ क्या है, कराची तुझको हुआ क्या है, कराची क्या हुआ तुझको, नजर किसकी लगी तुझको, कराची क्या हुआ तुझको, नजर किसकी लगी तुझको, वो तेरी रोशनी थी जो वो कैसे बुझ गई आखिर, कराची क्या हुआ तुझको, तेरे दामन में खुशियों के बहारें मुस्कुराती थी, तेरे दामन में खुशियों की बहारें मुस्कुराती थी, फजाएं गीत गाती थी, हवाएं गुनगुनाती थी, हवाएं गुनगुनाती थी, तेरे दामन में खुशियों की बहारें मुस्कुराती थी, फजाएं गीत गाती थी, हवाएं गुनगुनाती थी, कराची क्या हुआ तुझको, परिंदे तेरे साहिल पर, परिंदे तेरे साहिल पर उतर कर रक्स करते थे, परिंदे तेरे साहिल पर उतर कर रक्स करते थे, कि दिन की रोशनी में भी यहाँ जुगनू उतरते थे, कि दिन की रोशनी में भी यहाँ जुगनू उतरते थे, कराची क्या हुआ तुझको। तो ये था कराची नामा जो मैंने आपको सुनाया। और एक कथा है, इस तरह अपने ही जख्मों को हवा दी मैंने, इस तरह अपने ही जख्मों को हवा दी मैंने, गुस्सा था लेकिन खुद को सजा दी मैंने, पहले कंदील जलाई कि जहां हो रोशन, पहले कंदील जलाई कि जहां हो रोशन, और फिर कंदील बुझा दी मैंने, और फिर कंदील बुझा दी मैंने, इस तरह अपने ही जख्मों को हवा दी मैंने, जुर्म उसका था मगर खुद को सजा दी मैंने। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत वक्त की कमी की वजह से मैंने सिर्फ एक गजल एक कथा को रखा। हेलो जी, आवाज आ रही? कुछ आवाज है कुछ ज्यादा। हेलो शाजी साहबा के अलावा बाकी म्यूट कर दें। जी जी, शादी आगे साहबा आवाज आ रही म्यूट करती है आप। जी मुशायरा आगे बढ़ाएं। जी जी, शादी साहबा खत्म हो गया। हाँ हमको खत्म हो गया। जी, ये थी कराची से मोहतरमा शाजिया आलम शाजी साहबा, कराची के बारे में भी अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। सदर साहबा की इजाजत से मैं एक कथा पेश करना चाहूंगा। पहले रागिब मुरादाबादी का कलाम से कथा है। मौज नसीम सुबह ना जोशे नमू से था, जो फूल सुर्ख रू था खजा के लहू से था, तेरे सकूत ने उसे वीरान कर दिया, दिल बाग बाग मेरा तेरी
गुफ्तगू से था। वाह जी अब हम डॉक्टर साहब इजाजत, अब हम दावत कलाम देंगे इंडिया से, जो मोहतरमा नहीं आई थी पहले, वो आ चुकी हैं मेरा ख्याल। जी फौजिया अख्तर साहिबा की। फौजिया अख्तर साहिबा कलकत्ता इंडिया से। जी उनकी खिदमत में दरखास्त है कि अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। फौजिया अख्तर रिदा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? माशाल्लाह। जी मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इरशाद। जी रागिब मुरादाबादी की ये दो अशार। जिसे कहते हो तुम एक कतरे अश्क, जिसे कहते हो तुम एक कतरे अश्क, मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां है। जिसे कहते हो तुम एक कतरे अश्क, मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां है। और एक शेर उनका है कि मैं कदा भी है करामत का मकाम, मैं कदा भी है करामत का मकाम, दस्ते साकी में सुबह बोलेगा। मैं कदा भी है करामत का मकाम, दस्ते साकी में सुबह बोलेगा। और एक नज़्म एहसास शेयर करना चाहूँगी। नज़्म का उन्वान है एहसास। खामोशी हर तरफ पाँव फैलाए, खामोशी हर तरफ पाँव फैलाए, कोई आहट नहीं आती मेरे कानों में, कोई आहट नहीं आती मेरे कानों में, जिससे हो गुमा मुझको, जिससे हो गुमा मुझको, हम आहंगी बशर की क्यों नहीं होती, हम आहंगी बशर की क्यों नहीं होती, दरीचा वाह नहीं होता मेरे इस्तिकबाल में दिल का, कोई ठंडी हवा की आँच बतलाए, कोई ठंडी हवा की आँच बतलाए, मुझे छूकर गुजर जाए। वो एक खामोश चेहरा घूरता रहता है मुद्दत से, वो एक खामोश चेहरा घूरता रहता है मुद्दत से, मगर ऐसा नहीं होता कि मुझसे पूछता कोई, कभी दस्ते मोहब्बत भी बढ़ाता मुस्कुराता भी, इसी एहसास को शायद सहारे की जरूरत है। जी शुक्रिया। और गजल के चंद अशआर। गजल का मतलब है कि गमों को दिल भुलाना जानता है, गमों को दिल भुलाना जानता है, मेरा दुख कब जमाना जानता है। वाह वाह। गमों को दिल भुलाना जानता है, मेरा दुख कब जमाना जानता है। और शेर है कि खबर उसको है मेरे हर अलम की, खबर उसको है मेरे हर अलम की, मेरे दिल का तराना जानता है। वाह वाह। खबर उसको है मेरे हर अलम की, मेरे दिल का तराना जानता है। और मैं उसकी हर अदा को जानती हूँ, मैं उसकी हर अदा को जानती हूँ, बनाना वो बहाना जानता है। मैं उसकी हर अदा को जानती हूँ, बनाना वो बहाना जानता है। बहुत शुक्रिया। और शेर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर आप सबकी नजर है कि छुपा होता है धोखा जिसके दिल में, छुपा होता है धोखा जिसके दिल में, निगाहें कब मिलाना जानता है। छुपा होता है धोखा जिसके दिल में, निगाहें कब मिलाना जानता है। और ये शेर है कि तमन्नाओं में दिल जो घिर गया है, तमन्नाओं में दिल जो घिर गया है, मोहब्बत का ठिकाना जानता है। तमन्नाओं में दिल जो घिर गया है, मोहब्बत का ठिकाना जानता है। और शेर के रज़ाए रब में जो होता है राजी, रज़ाए रब में जो होता है राजी, वो रब को भी मनाना जानता है। रज़ाए रब में जो होता है राजी, वो रब को भी मनाना जानता है। और मख्ता है कि जो है तहजीब से वाकिफ जहां में, बहुत शुक्रिया, जो है तहजीब से वाकिफ जहां में, रिदा को वो बुलाना जानता है। जो है तहजीब से वाकिफ जहां में, रिदा को वो बुलाना जानता है। गमों को दिल भुलाना जानता है, मेरा दुख कब जमाना जानता है। वाह वाह।
बहुत 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 खूब, शुक्रिया बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया खूब। बताने के लिए, बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सलामत रहें आप सब। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आई। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कबल इसके कि मैं हमारी महफिल में एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनकी खिदमत में दरख्वास्त करूं, मैं राग़िब मुरादाबादी के चंद अपने पसंदीदा अशार मोहतरमा सदर साहबा की इजाज़त से पेश करने चाहता हूं। सदर साहबा इजाज़त है। वैसे तो राग़िब मुरादाबादी का बहुत सा कलाम एक से एक बढ़कर है, लेकिन मुझे जो अशार उनके ख़ास तौर पर पसंद हैं वो मैं आज की इस महफिल में पेश करना चाहता हूँ। जान जिसने किसी पे दी ही नहीं, जिंदगी उसकी जिंदगी ही नहीं। यूं वो अहदे वफा को भूल गए, जैसे ये कोई बात थी ही नहीं। क्या कहना है, जैसे ये कोई बात थी ही नहीं। जिंदगी के हैं और भी मकसूद, जिंदगी के हैं और भी मकसूद, दोस्ती और दुश्मनी ही नहीं, दोस्ती और दुश्मनी ही नहीं। ये भी जीने में कोई जीना है, जीना है, ये भी जीने में कोई जीना है, दिल में एहसास जिंदगी ही नहीं। यूं वो बरगश्ता हो गए हमसे, राहो रस्म उनसे जैसे थी ही नहीं। वो बहारों का लुत्फ क्या जाने, जिनके दिल की कली खुली ही नहीं। आखिरी शेर है, जिसमें दर्द व असर ना हो रागिब, जिसमें दर्द व असर ना हो रागिब, तो ये है वो शायरी ही नहीं। वाह वाह वाह। ये था राग़िब मुरादाबादी का कलाम। अब हम आज डॉक्टर इसहाक साजिद साहब नहीं आए और अब हम दावत देंगे हमारे बरतानिया के, इंग्लैंड के मशहूर मारूफ शायर डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, जिनकी 14 कुतुब आ चुकी हैं और उसके अलावा होम्योपैथिक की कुतुब भी हैं और खूबसूरत पंजाबी कलाम भी पेश किया करते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो आज की इस महफिल में अपने कलाम से हमें अता करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। राग़िब मुरादाबादी साहब का एक शेर मोहतरमा सदर साहब की इजाजत से। जी जी इरशाद। शुक्रिया। आप फरमाते हैं कि हकीकत को छुपाया हमसे क्या क्या उसके मेकअप ने। अच्छा है वो निकली। हकीकत को छुपाया हमसे क्या क्या उसके मेकअप ने, जिसे लैला समझ बैठे थे वो लैला की माँ निकली। लैला की माँ निकली। राग़िब साहब का एक ही शेर बहुत है। वाह वाह वाह। उसने क्या मेकअप का क्या किया, मजाक उड़ाया। मेकअप का मजाक उड़ाया। अच्छा, मेकअप का मजाक उड़ाया है या लैला की माँ का मजाक उड़ाया? हमारे भाई मेकअप का कमाल तो मेकअप का है। है। नहीं, कमाल तो मेकअप का है ना जी। अच्छा, कमाल मेकअप का। ये एक गजल पेश करता हूँ। शब की तारीकी में एक याद पुरानी आई, वाह।
शब की तारीकी में एक याद पुरानी पुरानी आई, आई, वाह वाह वाह, एक था दिलदार के उल्फत न निभानी आई। हाय हाय क्या हाय, कहने। एक नहीं अब तो हजारों हैं। बहुत खूब। एक तमन्ना थी मोहब्बत के पनपने के लिए, बन के वो एक दुआ आंख में पानी आई। वाह, आज लिखने को जो बैठा हूँ बहुत सियासत की कथा, आज लिखने को जो बैठा हूँ सियासत की कथा, नो के खामा पे मेरे हीर कहानी आई। वाह, वाह वाह, बहुत खूब। उनके आने से खिले फूल बियाबानों में, उनके आने से खिले फूल बियाबानों में, वाह यूं लगा मुझको बुढ़ापे में जवानी आई। वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत सुंदर। वाह वाह। उनके आने से खिले फूल बियाबानों में, वाह यूं लगा मुझको बुढ़ापे में जवानी आई। वाह उनकी मुस्कान मुनव्वर है करामत जैसी, वाह, उनकी मुस्कान मुनव्वर है करामत करामत जैसी, वाह जिससे लुकनत न रही शोला बयानी आई। वाह 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 वाह, वाह बहुत खूब। एक नज्म पेश करने की इजाजत चाहता हूँ मोहतरमा सदर साहिबा से। ये नज्म जो है बेटी की रुखसती पर लिखी गई थी कुछ साल पहले, तो आज मुझे ख्याल आया है कि आज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। रुखसत है रूहे पिदर लख्ते जिगर नूरे नजर, वाह रुखसत है रूहे पिदर लख्ते जिगर नूरे नजर, वाह हो मुबारक ये तुझे ज्यादा इशरत का सफर। वाह सुभान अल्लाह। हर कदम पर यूं ही गुलहाए तमन्ना महके, हर कदम पर यूं ही गुलहाए तमन्ना महके, वाह गुलशने दिल पे यूं ही प्यार के तायर चहके, तेरी सांसों में घुले बागे वफा की खुशबू, तेरी सांसों में घुले बागे वफा की खुशबू, अपने हमराह लिए जा ये दुआ की खुशबू। वाह मुस्तरब दिल है मगर लब पे दुआ है बेटी, मुस्तरब दिल है मगर लब पे दुआ है बेटी, दिल तेरी माँ का भी टूट रहा है बेटी। हाँ मुझे तेरे बिछड़ने का बहुत गम है, मगर रस्म दुनिया से हूँ मजबूर मेरी लख्त जिगर, फर्ज लाजिम तेरी शादी का अदा कर डाला, फर्ज लाजिम तेरी शादी का अदा कर डाला, हो के मजबूर तुझे खुद से जुदा कर डाला। जा मेरे घर से ये पैगामे मोहब्बत ले जा, जा मेरे घर से ये पैगामे मोहब्बत ले जा, वाह वाह वाह, दामने दिल में छुपा कर ये नसीहत ले जा, वाह गीत ससुराल के हर हाल में अब गाने हैं, को शौहर के सभी हुक्म बजा लानी हैं, वज़ादारी का सदा ऊंचा यूं परचम रखना, वज़ादारी का सदा ऊंचा यूं परचम रखना, वाह वो जो तुझ पे कोई नाराज तो सर खम रखना, हौसला मंद अगर है तो सफर तय होगा, हौसला मंद अगर है तो सफर तय होगा, मुश्किलें आएंगी राहों में मगर तय होगा, वाह हुक्म इस्लाम पे चलना है हमेशा तुमको, वाह हर हिदायत को है कुरान से पाना तुमको, इद्दत और रस्म से तुम दूर ही रहना बेटी, जो हकीकत हो वही बात है कहना बेटी। वाह वाह वाह।
डगमगाना न कभी खत्मे सफर होने तक, डगमगाना न कभी खत्मे सफर होने तक, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। वाह 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 वाह, बहुत बहुत ही उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, दिल को छू गया। ये थे डॉक्टर मुनव्वर अहमद खंडे साहब, बहुत इंग्लैंड खूब, से बहुत अच्छी बात। बेटी की रुखसती के मौके पर कहा हुआ एक खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अब हम चलते हैं इंग्लैंड से हैदराबाद दक्कन, मेरा बहुत ही खूबसूरत पसंदीदा शहर, जहां आज से चंद साल कबल मैंने खूब सैर सियाहत की, जी भर कर सैर की, और बहुत खूबसूरत यादें हैदराबाद दक्कन के साथ वाबस्ता हैं। वहाँ से हैं हमारी मोहतरमा मूना एलिजाबेथ, माशाअल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी महफिल में उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। अक्सर हैदराबाद दक्कन में भी और हमारे इंग्लैंड में भी अक्सर मुशायरों में आती रहती हैं और अपना खूबसूरत कलाम पेश करती रहती हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं। उनसे दरख्वास्त है कि अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा मूना एलिजाबेथ साहबा। आदाब। मैं जो रागिब मुरादाबादी साहब के जो अशार सुने, पहले भी कोई सुना है, फिर भी मैं अब सुनाती हूँ कि जिसे कहते हो तुम एक कतरे अश्क मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां है। और दूसरा शेर है कि नाकामियों ने और बढ़ाए हैं हौसले, गुजरा हूँ जब भी कभी मैं किसी इम्तिहान से। वाह वाह वाह। सदर साहिबा इजाजत है, मैं अपनी गजल सुनाती हूँ। गजल का मतलब है, कुछ डिस्टर्बेंस है वतन से, बैकग्राउंड कहीं क्या आवाज आ रही है? आवाजें आ रही है, जी जी। नहीं कोई बात, बंद हो गई है। ओके, इस मतलब से, वतन से दूर होते जब वतन की याद आती है, वतन से दूर होते जब वतन की याद आती है, ये रेगिस्तान में अक्सर चमन की याद आती है। चमन की याद आती है। ये रेगिस्तान में अक्सर चमन की याद आती है। कभी यूं हंसते हंसते भी भुला पाए नहीं उसको, कभी यूं हंसते हंसते भी भुला पाए नहीं उसको, सदा रहती है दिल में जो घुटन की याद आती है, सदा रहती है दिल में जो घुटन की याद आती है। यहाँ ये देखिए कि यहाँ एक घर से दूजा घर चिपकता है ये भय बस्ती, यहाँ एक घर से दूजा घर चिपकता है यह है बस्ती, हमारे गांव के घर के सहन की याद आती है, हमारे गांव के घर की सहन की याद आती है। और हुए हम सबसे बेगाने परायों और अपनों से, हुए हम सबसे बेगाने परायों और अपनों से, जो अपना था कभी उस अंजुमन की याद आती है, जो अपना था कभी उस अंजुमन की याद आती है। शुक्रिया। हमेशा साथ रहने की जो कस्में खाए थे हमसे, हमेशा साथ रहने की जो कस्में खाए थे हमसे, बसे जो दूर अब जा बसे जो दूर अब उस जाने मन की याद आती है, बसे जो दूर अब उस जाने मन की याद आती है। आखिरी शेर है कि थी गुलदस्ते में खंजर सी, थी गुलदस्ते में खंजर सी हमेशा गुफ्तगू उसकी, थी गुलदस्ते में खंजर सी हमेशा गुफ्तगू उसकी, छुपी मीठी सी बातों में चुभन की याद आती है, छुपी मीठी सी बातों में चुभन की याद आती है। और मक्ता है कि बदल जाते हैं हम मोना जवानी में बुजुर्गी में,
बदल जाते हैं हम मोना जवानी में बुजुर्गी में, जो बचपन में रहा उस बांकपन की याद आती है, जो बचपन में रहा उस बांकपन की याद आती है। वाह वाह वाह। और अगर इजाजत हो तो एक दक्कनी गजल सुनाना चाहती हूँ। Sure. यहाँ परसों की बात हैदराबादी वाले जानते हैं कि दूर गया था परसों। अच्छा। दूर गया था परसों। हाँ, दूर गया था परसों, उन तो लौटा परसों। वो लौटा परसों। हैदराबादी है। हाँ, हैदराबादी दक्कनी गजल है। 2 दिन होन दो या 2 हफ्ते, 2 दिन होन दो या 2 हफ्ते, हैदराबाद का परसों। 2 दिन होन दो या 2 हफ्ते, हैदराबाद का परसों। हाँ, साल भी। तो ये ऐसा बोल सकती हूँ कि 2 दिन होन दो या 2 साला या 2 साला, हैदराबाद का परसों। और बहुत खूब। उन भी बुलाया परसों, उन भी बुलाया परसों, जाको मिला था परसों, जाको मिला था परसों। और ये शेर देखिए कि यार के बेटे की शादी थी, यार के बेटे की शादी थी, जो था मुन्ना परसों। यार के बेटे की शादी थी, जो था मुन्ना परसों। और ये शेर पे तवज्जो चाहूंगी कि बन गए कते अब उन अफसर, बन गए कते अब उन अफसर, आईदी पोटा परसों, आईदी पोटा परसों। छोड़ को उनको बरसों हो गए, छोड़ को उनको परसों हो गए, लग रहे सर का परसों, लग रहे सर का परसों। इतने दिना के बाद मिले तो, इतने दिना के बाद मिले तो रोना आया परसों। इतने दिना का बाद मिले तो रोना आया परसों। और ये कोरोना के टाइम का है कि घर के बाहर भी जाते थे, घर के बाहर भी जाते थे, क्या था जमाना परसों। घर के बाहर भी जाते थे, क्या था जमाना परसों। और मक्तार से के लिखने लगी है दक्कनी गजला, लिखने लगी है दक्कनी गजला, कैकू मोना परसों। लिखने लगी है दक्कनी गजला, कैकू मोना परसों। दूर गया था परसों, उन तो लौटा परसों। बहुत खूबसूरत कलाम। ये थी हैदराबाद दक्कन से मेहमान खसूसी मोहतरमा मोना एलिजाबेथ साहबा बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। यही कलाम उन्होंने एक दफा दुबई के मुशायरे में भी सुनाया था। तो अब हम चलते हैं, बहुत अच्छा कलाम। हैदराबाद दक्कन से चलते हैं हम इंग्लैंड में, लंदन में हमारे मशहूर मारूफ अदीब, शायर और सहाफ़ी जनाब राना अब्दुल रज़ाक साहब बहुत सी किताबों के मुसन्नफ और यूट्यूब पर भी प्रोग्राम करते हैं और मुख्तलिफ रसालों के मदीर हैं। उनकी खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि आज की इस महफिल में अपने खूबसूरत कलाम से हमें अता करें। जनाब राना अब्दुल रज़ाक खान साहब आसी, मदीर कंदील अदब। जी शुक्रिया जनाब मुबशर शहजाद साहब, आप दावत देने का। माशाअल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है मुशायरा। तो जी आपका भी शुक्रिया, आप हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हैं। जी मैं भी अर्ज कर देता हूँ चंद शेर। इरशाद। मोहब्बत के असीरों को तो वो मरने नहीं देता। मोहब्बत के असीरों को वो मरने नहीं देता। वाह वाह वाह, अच्छा मित्रा। मोहब्बत के असीरों को तो वो मरने नहीं देता,
मगर वो अपनी नींदों से हमें सपने नहीं देता। हाय 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 हाय। क्या कहने भाई, वाह क्या बात है। हम अपने आप को मरने पे अब आमादा क्या करते। आमादा क्या करते। हम अपने आप को मरने पे अब आमादा क्या करते। मगर गम का ये आलम है हमें जीने नहीं देता। हाय 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 हाय। क्या बात है, बहुत खूब राणा साहब। हमारा दर्द तो रंजो अलम ही से शगुफ्ता है। वाह वाह। हमारा दर्द तो रंजो अलम ही से शगुफ्ता है। ये ऐसा दर्द है अश्कों को जो पीने नहीं देता। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है राणा साहब। यही तो नौहा खां के इश्क का दस्तूर है यारो। इसका दस्तूर है यारो। यही तो नौहा खां के इश्क का दस्तूर है यारो कि वो तारे नजर से जख्म भी सीने नहीं देता। सीने नहीं देता। वाह वाह। हवा में बिखर जाएगा आसी नोहा बुलबुल का। बुलबुल का, वाह। हवाओं में बिखर जाएगा आसी नोहा बुलबुल का। मगर गुलची रगे गुल से तो खून बहने नहीं देता। वाह वाह वाह, बहने नहीं देता। बहुत खूब। मोहब्बत के असीरों को तो वो मरने नहीं देता। मगर वो अपनी नींदों से हमें सपने नहीं देता। सपने नहीं। क्या बात। एक और छोटी सी गजल चंद शेर मुलाजा हूँ। जी इरशाद। उन्हीं के फिक्रे मसलसल का कैफ तारी है। कैफ तारी। उन्हीं के फिक्रे मसलसल का कैफ तारी है। यही सबब है कि लहजे में बेकरारी है। बहुत अच्छी है। बहुत खूब। ये बात कैसरो किसरा को कौन समझाए। कैसरो किसरा को। ये बात कैसरो किसरा को कौन समझाए। किसी पे इश्क है आसान किसी पे भारी है। किसी पे। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत। मिलाना खिदर कोई गरचे मैं हूँ दश्त नवर्द। मिलाना खिदर कोई गरचे मैं हूँ दश्त नवर्द। तलाशे मंजिले जाना भी इस तरारी है। वाह वाह, बहुत अच्छा है राणा साहब। ये सीमा जर तो मताए गरूर इंसान है। बेशक बेशक। ये सीमा जर तो मताए गरूर इंसान है। गरूर इंसान है। मताए फक्र में पोशीदा इनकसारी है। इनकसारी। वाह वाह। मनाफकत के ताल्लुक को क्या करें आसी। मनाफकत के ताल्लुक को क्या करें आसी कि जिसमें डूब के लोगों ने बाजी हारी है। वाह वाह, बहुत खूब। दोबारा पढ़ा, अच्छा है। मनाफकत के ताल्लुक को क्या करें आसी कि जिसमें डूब के लोगों ने बाजी हारी है। बहुत अच्छा राणा साहब। उन्हीं के फिक्रे मुसलसल का कैफ तारी है। यही सबब है कि लहजे में बेकरारी है। वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे राणा साहब। बहुत शुक्रिया। ये थे मेहमान खसूसी लंदन से जनाब राना अब्दुल रज़ाक खान साहब आसी। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना साहब। अब हम एक और मेहमान खसूसी की तरफ चलते हैं जिनका तारुफ जिनका शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और अक्सर मुशायरों में आप सब ने देखा होगा, उनका कलाम सुना होगा।
जनाब साले अच्छा साहब, और कलाम भी अच्छा, शख्सियत भी अच्छी, और शायर भी अच्छे, नाम भी अच्छे, और कलाम भी अच्छा, अच्छे ही अच्छे। जनाब अच्छा मोहब्बत मोहब्बतें, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। रागिब साहब का एक शेर बड़ा खूबसूरत शेर है जो मुझे मेरे दिल को लगता है हमेशा कि हक बात ही कहेंगे सरेदार देखना, सरेदार देखना, हक बात ही कहेंगे सरेदार देखना, अहले कलम की जुर्रते इजहार देखना। वाह वाह वाह, क्या कहने, बड़े ज़ूदगो शायर थे हमारे रागिब साहब, बहुत ही बड़े ज़ूदगो शायर थे। इनके अक्सर मुशायरे, उनकी तदारत के मुशायरे में हिस्सा लेने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है। इतने बड़े शायर थे वो कि अगर शायर जो कलाम पढ़ रहा है उसी की जमीन में फिल बदी शेर कह दिया करते थे। इतने वाह, ऐसे बड़े शायर और ज़ूदगो शायर थे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक उनका दूसरा शेर है कि अब दिल की रह गुजार में वो चांदनी कहाँ, अब दिल के रह गुजार में वो चांदनी कहाँ, वो चांदनी कहाँ, अपना भी रब्तो ज़ब्त किसी माहरो से था, अपना भी रब्तो ज़ब्त किसी माहरो से था। अच्छा, उनके इनके ये जो मतलब है उस पर मैंने इनकी जमीन पर कुछ कहने की कोशिश की है, और हम कराची वालों से बेहतर जमीन हथियाना और कौन जानता है। हम चाइना के हम ही करते हैं। शाहिदा आलम साहिबा भी हैं, वो समझ रही होंगी कि चाइना कटिंग किसे कहते हैं। इसका मतलब है आप कब्जा माफिया से तल्लक है। जी जी जी, बहुत पुराने, बहुत पुराने। उनका शेर मतलब का शेर है कि हट जाएं अब ये शम्सो कमर दरमियान से, हट जाएं अब ये शम्सो कमर दरमियान से, मेरी जमीन मिलेगी गले आसमान से। वाह 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 वाह। इस मिसरे को मैंने अपने गजल के लिए चुना है, तो इसी जमीन में इतना कोशिश की, शायद आपको पसंद आए। अर्ज किया है, मुझ पर उतर के आई गजल आसमान से, मुझ पर उतर के आई गजल आसमान से, अशआर कह रहा हूँ बड़े आन बान से। वाह 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 वाह, छाती तान के। जब तक बॉस को, आसिफ साहब बॉस को, जब तक पो फटेगी, जब तक पो ना फटेगी वहां आसमान से, कैसे सहर करेगा मौजन अजान से। सब कुछ दिया जमीन ने उस आसमान को, सब कुछ दिया जमीन ने उस आसमान को, लेकिन जमीन को कुछ ना मिला आसमान से। क्या खूब, बहुत उम्दा। चेहरा उतर गया है अमीराने शहर का, चेहरा उतर गया है अमीराने शहर का, चुपती सी बात हमने जो कह दी जबान से। वाह 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 जी वाह, कमाल। जादू की सर जमीन पे खतरा है हर तरफ, जादू की सर जमीन पे खतरा है हर तरफ, सवाले जो घर से निकले तो जाओगे जान से, जाओगे जान से, सवाले जो घर से निकले तो जाओगे जान से, ऐ ना खुदा, खुदा के लिए होश तो पकड़, ऐ ना खुदा, खुदा के लिए होश तो पकड़, होश तो पकड़, टकरा न जाए फिर कहीं कश्ती चट्टान से। और अब मैंने जो तदवीन की है, जी तदवीन की है शेर की, तो ये देखिएगा कि मेरी तदवीन, मेरा गिरा मैंने जो लगाई है कि दुनिया का आखिरी वही मंजर बनेगा जब, दुनिया का आखिरी वही मंजर बनेगा जब, मेरी जमीन मिलेगी मेरे आसमान से, मेरे आसमान मिलेगी। चुप ही रहो तो अच्छा है अहदे जदीद में, मकता है कि चुप ही रहो तो अच्छा है अहदे जदीद में, सवाले जबान खोली
तो जाओगे जान। मुझ पर उतर के आई गजल आसमान से, अशआर कह रहा हूँ बड़ी आन बान से। वाह वाह, इसी जमीन में अच्छा साहब, हमारी कब छुटेगी जान इमरान से। 2028 तक तो मुश्किल है, आप बेफिक्र हो जाएं, आराम से सो जाएं, उसके बाद देखेंगे। एक और गजल है, अभी पिछले दिनों एक कमर जलाल आबादी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसकी रदीफ थी कि उसके कमर जलाल भी, हाँ कमर जलाल आबादी, जलाल भी अलग थे। अच्छा, जलाल भी अलग है, जलाल आबादी अलग है। अच्छा, ये इनका असल नाम था ओम प्रकाश भंडारी। ठीक। ये फिल्मों में गाने भी लिखते थे। अच्छा। तो ये अमृतसर के किसी गांव जलालाबाद में पैदा हुए थे, इसलिए इन्होंने अपना कलमी नाम रखा था कमर जलाल आबादी। उनकी एक गजल बड़ी वायरल हुई थी, उसकी जमीन मुझे बड़ी, जमीन नहीं बल्कि उसका रदीफ मुझे दिल को छू गया। मैंने कहा कोशिश करूं। आप जमीन का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा नहीं, जमीन यहाँ रदीफ पर आ गया, वहाँ जमीन ठीक नहीं है, यहाँ रदीफ को हत्या आया मैंने। अच्छा। हाँ, तो रदीफ, मैंने कहा कि रदीफ बड़ा खूबसूरत लगा, रदीफ था। उसके बाद क्या, अच्छा, तो मैंने सोचा कि चलो इसके पर शुरू करते हैं, लेकिन जब लिखने बैठा हूँ तो दांतों तले पसीना आ गए मुझे। वाह वाह वाह, कोशिश की है, देखिएगा। होता नहीं दुआ में असर, इसके बाद क्या। अच्छा, वाह। होता नहीं दुआ में असर, इसके बाद क्या। वाह। बांधा है फिर भी रखते सफर, इसके बाद क्या। वाह, इसके बाद क्या। है सब अभी तो अपना, मगर उसके बाद क्या। वाह। है सब अभी तो अपना, मगर उसके बाद क्या। बाद क्या। रखे हैं पासो लालो गहर, उसके बाद क्या। वाह वाह वाह। दुनिया की रौनकों में उलझती गई नजर, दुनिया की रौनकों में उलझती गई नजर, जाती रहेगी जब ये नजर, उसके बाद क्या। उसके बाद क्या। जलता रहा हूँ रोज यूं ही आफताब से, जलता रहा हूँ रोज यूं ही आफताब से, दे देगा साया कोई शजर, उसके बाद क्या। वाह। हिजरत की आरज़ू थी बहुत, लोग वो भी हो गई। वाह। हिजरत की आरज़ू थी बहुत, लोग वो भी हो गई। अब तो यहाँ बना लिया घर, उसके बाद क्या। पहले जो फल लगे थे कोई लूट ले गया, पहले जो फल लगे थे कोई लूट ले गया। लाएगा फल नए वो शजर, उसके बाद क्या। एक दूसरे के खून में लथपथ हैं सब यहाँ, एक दूसरे के खून में लथपथ हैं सब यहाँ। हो जाऊं मैं भी खून में तर, उसके बाद क्या। उसके बाद। वाह वाह वाह। आदाब। हम तो बहुत दिनों से मुसलसल सफर में हैं, हम तो बहुत दिनों से मुसलसल सफर में हैं, पहुंचेंगे खैर से कभी घर, उसके बाद क्या। पिघली है रोशनी के लिए शम्मा रात भर, पिघली है रोशनी के लिए शम्मा रात भर, होने लगी है अब तो सहर, उसके बाद क्या। होने लगी अब तो सहर, उसके बाद। और तारे मक्ता है कि संगे जुनू है आज भी मजनू के हाथ में, संगे जुनू है आज भी मजनू के हाथ में, मिल जाए कोई आईना घर, उसके बाद क्या। उसके बाद क्या। राहों से सवाले मक्ता है के राहों से सवाले अपनी अभी मुतमईन नहीं, माना के शऊर सफर, माना के है शऊर सफर, उसके बाद क्या। है सब अभी तो अपना, मगर उसके बाद क्या। रखे हैं पास लालो गहर, उसके बाद क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो कराची वाले हमारे डॉक्टर इसाक साजिद साहब आ गए।
जी डॉक्टर इसाक साजिद साहब बड़े बर वक्त आए हैं ये मेहमान सुना रहे थे अपना कलाम साली अच्छा साहब कनाडा से, और इनका ताल्लुक तो कराची से है, लेकिन कनाडा में 21 साल से हूँ जी। और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा खूबसूरत कलाम सुनने को मिला। अब हम चलते हैं एक और मेहमान खुसूसी डॉक्टर इसाक साजिद साहब जर्मनी और समंदर इंटरनेशनल के मुदीर हैं और बहुत सी किताबों के मुसन्नफ हैं और बहुत ही खूबसूरत उम्दा कलाम कहते हैं और तरन्नुम के साथ भी कलाम पेश करते हैं और बहुत सारी गीतों की किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। दरख्वास्त करते हैं जनाब डॉक्टर इसाक साजिद साहब ऑफ जर्मनी से कि वो अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। जी उनको कहने माइक खोले ना, माइक खोले उनका माइक खोल। जी 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 साहिब सदर की इजाजत से जी क्योंकि आज शुक्रिया, आज का दिन क्योंकि हम रागा मुरादाबादी के नाम से मंसूब कर रहे हैं, तो मैं क्योंकि प्रोग्राम नहीं सुन सका, अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं जो 2 शेर उनके पेश करूंगा, शायद पहले भी किसी ने कर दी हूँ। आप 27 मार्च 1918 को पैदा हुए दिल्ली में और वफात जो है आपकी 18 जनवरी 2011 है कराची में। आपकी 18 तसनीफात हैं, किताबें हैं, जिनमें रबायात, नातिया, मजमुआ कलाम, मजनून कलाम, मज़ामीन और सफरनामे शामिल हैं। आपके बेशुमार दुनिया में शागिर्द हैं, जिसमें एक नुमाया नाम जो है वो है हबीब जालब। अच्छा, उनके शागिर्द थे। जी जी बिल्कुल। उनके 2 शेर पेश कर देता हूँ उनके नजर, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी ने और पेश। एक है कि जी मैंने पेश किया था पहले शुरू में जी। जिसे कहते हो तुम कतराए अश्क, जिसे कहते हो तुम कतराए अश्क, मेरे दिल की मुकम्मल दास्तां है। और एक उनका शेर है कि हकीकत को छुपाया हमसे क्या क्या उसके मेकअप ने। हकीकत को छुपाया हमसे क्या क्या उसके मेकअप ने, इसे लैला समझ बैठे थे वो लैला की मां निकली। वाह 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 वाह। ये है कि आपकी और मेरी पसंद मेकअप के। अरे डॉक्टर कुंडे आप भी सुना सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था। कुंडे भाई नहीं, अच्छा किया आपने रिपीट किया है। नहीं कुंडे साहब, मैंने भी ये किया था इसका। नहीं, इससे रागब मुरादाबादी के मज़ाक का भी पता चलता है ना इस शेर में। जी तो मैं एक गीत पेश कर देता हूँ। जी जी शुक्रिया। दूर है मंजिल, रास्ता है दुश्वार सखी, आओ करें मिलजुल के दरिया पार सखी। वाह। झूल रही लहराती नैया सागर में, झूल रही लहराती नैया सागर में, जैसे छल छल करता पानी गागर में। वाह। शोर सुनाई देता मन में आंधी का, शोर सुनाई देता मन में आंधी का, हाथ बटाओ आकर अपने साथी का। थामो तुम भी साथ मेरे पतवार सखी, आओ करे मिलजुल के दरिया पार सखी। वाह वाह। लगता है डर सागर की गहराई से, ऊंची मौजों की अंगड़ाई से, लगता है डर सागर की गहराई से, ऊंची ऊंची मौजों की अंगड़ाई से। बात
बात यही रह जाती एक समझाने को, आते हैं ये सारे मुसाफिर जाने को। सच्चाई से किसको है इनकार सखी, आओ करें मिलजुल के दरिया पार सखी। टूटी कश्ती तेज हवा चढ़ता पानी, टूटी कश्ती तेज हवा चढ़ता पानी, इस पर भी करता है दिल ये मनमानी। छूती हैं फिर अंबर को उठती लहरें, चैन से राही दो पल कैसे अब ठहरें। दिखते हैं फिर तूफान के आसार सखी, आओ करे मिलजुल के दरिया पार सखी। दूर है मंजिल रास्ता है दुश्वार सही। शुक्रिया जनाब, बड़ी बहुत खूबसूरत, जी शुक्रिया कलाम। जी बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर हिसाक साजिद साहब जर्मनी से तरन्नुम के साथ बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। डॉक्टर साहब कुछ और भी पेश करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल काफी है, मैं क्योंकि लेट भी आया हूँ तो फिर इस तरह अच्छा नहीं लगता। जी अब हम जर्मनी से चलते हैं हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शहर पुणे में, और हमारे आज की इस महफिल की सदारत फरमा रही हैं मोहतरमा डॉक्टर मुमताज मुनव्वर पीर भाई साहबा, और हमारे पूर्णा में हमारे अजीज भी हैं वैसे, और मेरी बेटी के ससुराल वाले वो भी पूना में होते हैं, वो भी माशाल्लाह मुमकिन है ये प्रोग्राम सुन रहे हो। तो अब हम दरख्वास्त करते अच्छी हैं। बात है। जी पूना से हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। अच्छा। हमारे अजीज और कारब वहाँ मौजूद हैं, और डॉक्टर साहबा आपसे दरख्वास्त है कि आज के इस प्रोग्राम के बारे में अपने रिमार्क्स, अपने ख्यालात और अपना खूबसूरत कलाम भी पेश करें, और ताकि फिर इसके बाद ये इजलास की कार्रवाई इख्तिताम पजीर होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बज़्म इल्म अदब ग्लासगो की और खुसूसी तौर पर मुनव्वर कंदे साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ और नाअहल को इस काबिल समझा कि आज के प्रोग्राम की मुझे सदारत बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, और बहुत जितने भी शुरका थे सबका कलाम एक से बढ़कर एक। मैं किस किस को दाद दूं और किस किस की बात करूं। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनने को मिला, और चूंकि आज का मुशायरा रागिब मुरादाबादी के नाम से मंसूब है तो मैं उनके दो अशार पढ़ना चाहूंगी। एक तो जिस की जमीन अच्छा साहब ने हथियाली और गजल पढ़ी। जी अच्छा साहब ने तो एक समा बांध दिया। तो वही शेर पढ़ना चाहूंगी कि मुझे भी वो शेर अशार पसंद है कि हट जाए अब ये शम्स कमर दरमियान से, हट जाए अब ये शम्स कमर दरमियान से, मेरी जमी मिलेगी गले आसमान से। और ये शेर बहुत ही अच्छा है कि वो मेरे ही कबीले का बागी न हो कहीं, वो मेरे ही कबीले का बागी न हो कहीं, तीर इधर को आया है जिसकी कमान से, वाह वाह वाह, इधर को आया है जिसकी कमान से। बहुत अच्छा है, बहुत। ये जमीन इसीलिए तो पसंद थी मुझे। जी मैंने कहा हत्या हो, इससे पहले कि कोई हत्या है हत्या लो। आपने जमीन हत्या ली, फिर रदीफ हत्या लिया, अब इसके बाद क्या? सब कुछ अब उसके बाद देखेंगे कुछ। अब तो राय कुछ नहीं तो। जी एक गजल के चंद अशार तहत में पेश करती हूँ और उसके बाद कुछ अशार तरन्नुम में। अगर तो देखिए मतला कहा है कि वतन की याद ने हमको तो सोगवार किया है,
वतन की याद ने हमको तो सोगवार किया है, लगाई आग सी दिल में वो अश्कबार किया है। वो अश्कबार किया है। वतन की याद ने हमको तो सोगवार किया है, लगाई आग सी दिल में वो अश्कबार किया है। और शिकन जो उनकी जबीं पर दिखाई दी सुनकर, शिकन जो उनकी जबीं पर दिखाई दी सुनकर, तवील किस्से गम का भी इख्तिसार किया है। बहुत अच्छा। इख्तिसार किया है। शिकन जो उनकी जबीं पर दिखाई दी सुनकर, तवील किस्से गम का भी इख्तिसार किया है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिए कि ये एक राह हिदायत को तेरी भूल गए हम, ये एक राह हिदायत को तेरी भूल गए हम, हमें हमारे गुनाहों ने शर्मसार किया है। वाह 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 वाह, गुनाहों ने शर्मसार किया है। बहुत अच्छा, शुक्रिया। और ये शेर भी बतौर खास के फरेब लाख मिले हमको फिर भी ज़र्फ है अपना, फरेब लाख मिले हमको फिर भी ज़र्फ है अपना, कि दोस्तों पे सदा हमने एतबार किया है। मुकर्रर दोबारा पढ़े, बहुत खूब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेर। फरेब लाख मिले हमको फिर भी ज़र्फ है अपना, फरेब लाख मिले हमको फिर भी ज़र्फ है अपना, कि दोस्तों पे सदा हमने एतबार किया है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर पेश करती हूँ कि तेरी तलाश में दर दर की ठोकरें ही मिली हैं, तेरी तलाश में दर दर की ठोकरें मिली हैं, तमाम उम्र खुशी तेरा इंतजार किया है। वाह 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 वाह, दोबारा पढ़ें शेर। तेरी तलाश में दर दर की ठोकरें ही मिली हैं, तेरी तलाश में दर दर की ठोकरें ही मिली हैं, तमाम उम्र खुशी तेरा इंतजार किया है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, तेरा इंतजार किया है। वतन की याद ने हमको तो सोगवार किया है, लगाई आग सी दिल में वो अश्कबार किया है, लगाई आग सी दिल में वो अश्कबार किया है। बहुत और कुछ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और एक गजल के चंद अशार तरन्नुम में पेश करती हूँ। जी क्या कहना। एक आग का दरिया सा उस पार नजर आया, वाह तरन्नुम, वाह नजर आया, वाह। एक आग का दरिया सा उस पार नजर आया, उस पार नजर आया, ईमान पे चलना अब दुश्वार नजर आया, वाह वाह, क्या खूबसूरत, नजर आया, ईमान पे चलना अब दुश्वार नजर आया, दुश्वार नजर आया। खूबसूरत, वाह जी। और देखिए गजल का शेर कि दिल था न मेरे बस में जिस तरह धड़कता था, जिस तरह धड़कता था, दिल था न मेरे बस में जिस तरह धड़कता था, जिस तरह धड़कता था, पूछो न मेरी हालत जब यार नजर आया, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, दोबारा पढ़ें। पूछो दिल न मेरे बस में जिस तरह धड़कता था, जिस तरह धड़कता था, पूछो न
जब यार नजर आया, जब यार नजर आया, मौसम खबर जब दी महबूब के आने की, महबूब के आने की, मौसम ने खबर जब दी महबूब के आने की, महबूब के आने की, दिल और जहां सारा सरशार नजर, वाह भाई वाह, वाह वाह भाई वाह, वाह, भाई वाह, वाह, क्या कहने, बहुत खूब। दिल और जहां सारा सरशार नजर आया, सरशार नजर आया, वाह वाह, क्या तदबीर। सरशार नजर आया। और ये शेर पर कोई खास मुलाहिजा करें। बातें तो बड़ी करते हैं लोग उसूलों की, वाह क्या मिसरा, वाह उसूलों की, बड़ी करते हैं, बातें तो बड़ी करते हैं लोग उसूलों की, हैं लोग उसूलों की, वो शाज मिला जिसमें वाह वाह वाह, नजर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर, भाई भाई वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया नवाजिश। बातें तो बड़ी करते हैं लोग असूलों की, लोग असूलों की, वाह असूलों की, है लोग उसूलों की, वो शाज मिला जिसमें वो शाज मिला जिसमें नजर आया, खूबसूरत शेर और खूबसूरत तरन्नुम, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, आया। बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर पेश करती हूँ। देखिए आजकल के जमाने की बात है कि जब वक्त पड़ा मुश्किल कोई भी न था हमदम, था हमदम, जब वक्त पड़ा मुश्किल कोई भी न था हमदम, कोई भी न था हमदम, खुशहाल जमाने में हर यार नजर आया, हर यार नजर आया, वाह वाह, खुशहाल जमाने में हर यार नजर आया, हर यार नजर आया, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, का दरिया सा उस पार नजर आया, उस पार नजर आया, ईमान पे चलना अब दुश्वार नजर आया, बहुत खूब, बहुत खूब, दुश्वार नजर आया। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। कलम जी मुबश्शिर साहब, जनाबे अली, शहजादा साहब खोल लें, आवाज खोल लें। सॉरी जी, ये थी मोहतरमा डॉक्टर मुमताज मुनव्वर पीर भाई साहबा, वो पुणे से हमारी आज की इस महफिल की सदारत कर रही थी और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम भी सुनने को मिला और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा महफिलों में भी इसी तरह से तशरीफ लाती रहेंगी और अपने कलाम से हमें नवाजती रहेंगी। आज सबने ही बहुत ही उम्दा खूबसूरत कलाम
اور کراچی والے تو خاص طور پر چھا گئے آج کی اس محفل میں. تو کراچی والوں کو ہم کب بھول سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلام تھا, سب کا ہی اچھا کلام تھا. کراچی والوں کا تو میں نے ویسے نام لے دیا, میں خود ایک لمبا عرصہ میں نے کراچی میں گزارا ہے, تو اس لیے مجھے کراچی سے زیادہ انس بنیادی وجہ یہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کراچی والوں سے گھائل ہیں. جی 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 یہ صحیح ہے. کراچی کی یادیں تو انمٹ یادیں ہیں, ہمیشہ یاد رہیں گی. 53 سال گزارے ہیں کراچی میں, 53 سال. جی اللہ کرے. 4 سال کی عمر میں پہنچا تھا کراچی, 57 سال کی عمر میں یہاں آیا ہوں. اچھا, اور 21 سال ہو گئے تو 78 ہو گئے پورے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اردو کے اکثر شاعر یو پی میں پیدا ہوئے ہیں اور کراچی میں فوت ہوئے ہیں. ہاں کراچی میں بسے ہیں. کراچی میں بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. تو بہت مزہ آیا آج, سب کا کلام سننے کو ملا, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے مشاعروں میں اسی طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے, خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. اور دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے, کرو جب یاد اپنوں کو, ہمیں بھی یاد کر لینا. ہمیں بھی یاد کرنا انشاءاللہ. من میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کرنا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. تو اسی کے ساتھ آپ سب کو اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ سب کا ناصر ہو. خدا حافظ. 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 اللہ حافظ. اللہ حافظ.